the concept of work, power and energy. In our previous lectures, we had already studied about the concept of work. Work क्या होता है मैंने समझाया था, and the concept of power. What do you mean by power input, power output, or power delivered or power dissipated? पावर इनपुट को हम पावर डिलीवर्ड भी कहते हैं और पावर आउटपुट को हम पावर डिसिपेटेड भी कहते हैं। और हमने एफिशिएंसी ऑफ मशीन समझा था। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पढ़ ली थी और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद में हमने कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन वहां ऑब्टेन कर लिया था। और उसके बाद मैंने मेरे पिछले आर्टिकल में लास्ट लेक्चर में जो समझाया था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग which is a simple machine which is frequently used in mechanics, which is frequently used in day to day life. इसका natural length, इसकी elongation, इसका compression, और spring के लिए how elongation and compression are related to the force. Force is equal to kx और spring constant. Spring constant के लिए expression, now spring constant is equal to kx means spring constant K, K is given by force upon x. The spring constant K is given by F upon x. Or you can always say it's force needed to elongate or compress the spring by unity or by unit length. It's force needed to elongate or compress the spring by unity. If x is equal to 1 unit, the spring constant is equal to force. मैं exactly यहीं से अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। My next article is the concept of potential energy of spring. Potential energy of spring. देखिए, this is a spring at its natural length. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. The spring at its natural length have got 9 turns. It have got natural length of L and it have got 9 turns in it. Now, I wish to elongate the spring or I wish to compress the spring. मैं दोनों ही सिचुएशन को स्टडी करता हूं। In order to elongate it, I need to apply some elongative force. At any instant, it's elongated by x. At any instant, it's elongated by x, and in order to elongate it by x, a elongative force of kx is applied at this instant. जब इस पर
एक्स से एलोंगेशन है तो इस तरह से की एक्स से इसको खींचा जा रहा होगा. दिस फोर्स इज एलोंगेटिव फोर्स. अब मैं कहता हूं दिस एलोंगेटिव फोर्स के एक्स इज अ वेरिएबल फोर्स. स्प्रिंग में जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे उसको एलोंगेट करने के लिए, उसको एक्स से एलोंगेट करने के लिए जो फोर्स नीडेड है वो भी बढ़ता जाएगा. वी यूज टू से हियर दिस फोर्स, एलोंगेटिव फोर्स kx इज वेरिएबल. हियर elongative force kx is a variable force. यह एक वेरिएबल फोर्स है. We used to say some external agent, some external source must be applying this force. कोई पर्सन, कोई एजेंसी इसको पकड़ के ऐसे खींच रही होगी. ध्यान रहे जितना फोर्स पर्सन इधर लगा रहा है kx, उतना ही फोर्स यह रिजिड वॉल, यह रिजिड सपोर्ट जिससे स्प्रिंग बंधी हुई है वहां से भी लग रहा है. मगर दिस इज अ फिक्स्ड एंड अ रिजिड सपोर्ट. इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है. इस जगह पर फोर्स kx से स्प्रिंग एलोंगेट होती जा रही है. नाउ I wish to determine the work done by this force to carry out this elongation. इसको इसकी नेचुरल लेंथ से x लेंथ तक एलोंगेट करने के लिए जो वर्क डन हुआ है, I wish to calculate that work done. If it is further elongated by dx length, if it is further elongated by dx length, then in order to do this dx displacement, इसको dx से displace करने के लिए we need to do some work of, and that is differential work, and it's f dot dx. This is differential work done by the external agent. जो फोर्स लगा रहा है वो इतना वर्क करेगा. डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट से इसको डिस्प्लेस करने के लिए डिफरेंशियल वर्क होगा. दिस वर्क डन टू डिस्प्लेस इट बाय डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx. अब we always write it in this fashion. It's mod of f into mod of dx into cos of angle between them, and observe that force and dx, they are parallel, they are collinear, the angle between them is 0 degree. तो इस जगह पर हम cos of 0 degree लिख देंगे. Now mod of force, magnitude of force is kx, and magnitude of dx is simply dx, and cos of 0 degree is plus 1. So differential work needed to elongate this spring by dx length is this, kx dx. This is the differential work needed to elongate the spring by dx length. Up, I wish to calculate the total work done in order to elongate the spring from its natural length to elongation of x. इसकी नेचुरल लेंथ से लेकर x तक elongate करने के लिए मुझे टोटल वर्क निकालना है. Work is a scalar quantity, it should be scalarly added. We had determined differential work. In order to calculate the
total work, we need to add differential work, and adding differential work means integrating dW. The work done is integral of dW. It would be integral of kx dx. Now, this work done, now this k is a constant, इसे हम इंटीग्रल साइन के बाहर लिख देंगे और इंटीग्रल साइन के अंदर रह गया इंटीग्रल ऑफ x dx. नाउ इंटीग्रेट करते समय वी नीड टू पुट द लिमिट्स, इनिशियल लिमिट्स एंड फाइनल लिमिट्स. हम इनिशियली कहां से कहां वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं. इनिशियली व्हेन स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, एलोंगेशन इज 0. जब यह स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, इसका एलोंगेशन 0 है, x की वैल्यू 0 है. एंड when the spring is elongated by x, the value of x is x. So initial elongation, initial value of x is 0, initial elongation is 0, final elongation is x. Now इस जगह पर अब हमें इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना है. वह फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं. इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1. This is the formula. मैं n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, x to the power 1 dx इसी फॉर्मूले में, एंड आई राइट वर्क इज इक्वल टू k इंटू, इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह से लिख देते हैं 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1, और लोअर लिमिट 0 इधर और अपर लिमिट x इधर. x to the power n dx, तो इट्स इंटीग्रल इज x to the power n plus 1 upon n plus 1, n की जगह पर 1. Now after integrating it we substitute the limits. First upper limit minus lower limit. Work done is k x square by 2 minus 0 square by 2, or work done is half k x square. नाउ हमने यह निकाला क्या है, इसको हम फिजिकली बात को समझे. स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पर है और नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग को जब हम एलोंगेट करना चाहेंगे, इसको खींचना चाहेंगे, इसको एक्स से एलोंगेट करना चाहेंगे, इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू डू सम वर्क, वी नीड टू पुट सम एनर्जी इनटू इट. हम 0 लेंथ से जब तक उसको x लेंथ तक खींच कर लाएंगे, ड्यूरिंग दिस फिनोमेना वी हैड done this much amount of work into it, or we had added this much amount of energy into it. ऐसा करते समय हम स्प्रिंग के अंदर इतनी एनर्जी डाल देंगे. अब यह जो एनर्जी है यह स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, और स्प्रिंग के अंदर यह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई, बिकॉज वी आर चेंजिंग द शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग. जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग का शेप चेंज कर दे रहे हैं, उसका साइज बदल दे रहे हैं, उसका ज्योमेट्री बदल दे रहे हैं. एंड द एनर्जी possessed by any system
due to its position, due to its shape, due to its geometry, we call it potential energy. तो जो भी कुछ हम वर्क कर रहे हैं ये उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रही है, स्प्रिंग के अंदर चली जा रही है. नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, work energy theorem says that work done is equal to change in energy. Work done is equal to change in energy, and in this situation the change in energy is taking place in the form of potential energy. Hence I will say work done is equal to change in potential energy, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी को कई बार U से भी डिनोट कर देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी समटाइम इट्स डिनोटेड बाय U. Hence I will say this work done is final potential energy minus initial potential energy. इस वर्क डन की जगह मैं लिखता हूं हाफ kx square is equal to final potential energy. Now final potential energy means potential energy when spring is elongated by x, and initial potential energy is when spring is elongated by 0 length. Final potential energy when elongation is x minus initial potential energy when elongation is 0. अब एक कंसेप्ट और बताता हूं. पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की एक रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती है. हमें पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्चुलाइज करने के लिए, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्चुलाइज करी है, और उसके लिए हमने कहा है कि हमेशा हम एक रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं. वो रेफरेंस चाहे या फ्लोर हो, चाहे रोड लेवल हो, चाहे सी लेवल हो, और फिर उस रेफरेंस से हम हाइट नापते हैं. फिर हम पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस कहते हैं. बिल्कुल इसी तरह से इस समय जब हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहे हैं तो इधर भी हमें एक रेफरेंस डिफाइन करना होगा, एंड दैट रेफरेंस इज डिफाइंड एज इट्स नेचुरल लेंथ. द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग की कोई एलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, इस कंडीशन पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस बना दिया जाता है. पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो एलोंगेशन और जीरो कंप्रेशन इज असाइन्ड एज 0. नाउ दिस इज टेकन एज अ रेफरेंस. हम इसे 0 कह देंगे. हम कहते हैं जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है तो उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी, उसको कंप्रेस करते हैं तब उसके पास कुछ एनर्जी आती है, उसको एलोंगेट करते हैं तब उसके पास कुछ एनर्जी आती है. हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्प्रिंग इज एलोंगेटेड बाय x is always equal to half kx square. This is potential energy of a spring when it is elongated by x. अब खास बात, elongate करने पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर है. कंप्रेस करने पर क्या इतनी ही एनर्जी होगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा, इसे हम अब छोटे से में समझ लेते हैं. यहीं पर मुझे दोबारा पूरा डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है. जब मैं इसे कंप्रेस करने जाऊंगा तो the situation would be like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैं पहले ही बता चुका हूं, स्प्रिंग को चाहे आप एलोंगेट करो चाहे आप कंप्रेस करो, नंबर ऑफ टर्न्स दैट रिमेन सेम. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते घटते नहीं है. इधर मैंने क्योंकि 9 टर्न्स बना रखे हैं इसलिए इधर भी ड्रॉ करते समय मैंने 9 टर्न्स ही बनाए. अब यह स्प्रिंग
हमने इसे कंप्रेस करा और अब इसकी लेंथ जो दिखाई दे रही है दैट इज L माइनस एक्स, और इसे इस तरह से कंप्रेस करने के लिए हमें इसे इस तरह से फोर्स लगाना होगा. दिस वुड बी द कंप्रेसिव फोर्स. हम जितना फोर्स स्प्रिंग के इस एंड पर इस तरह से लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड बाय द रिजिड वॉल, इक्वल एंड अपोजिट. मगर रिजिड वॉल है, स्टेशनरी वॉल है, स्प्रिंग के इस एंड का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि यह एंड एक्स से डिस्प्लेस हो चुका है, एक्स से स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है और उस पर इस तरह का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है. और एक्स से कंप्रेस जब हमने कर रखा है, इस समय जो कंप्रेसिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू एक्स. दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स in the spring. Once again, this compressive force in the spring would be a variable force. जितना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, जितना x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कंप्रेसिव फोर्स भी आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा. आपको थोड़ा कंप्रेस करना है तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा कंप्रेस करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. The compression would be directly proportional to force, or force would be directly proportional to compression. अब once again, जब यह x से कंप्रेस्ड है, फर्दर उसको dx से कंप्रेस करने के लिए, फर्दर उसको dx से कंप्रेस करने के लिए we need to do some differential work. That differential work, in order to compress it further by dx length, would be f dot dx. भले ही हम कंप्रेस कर रहे हैं, मगर फोर्स का मैग्नीट्यूड वही, मॉड ऑफ फोर्स, मॉड ऑफ डीएक्स, एंड ऑब्जर्व द एंगल. पहले भी एंगल जीरो था, अब भी एंगल जीरो है फोर्स वेक्टर और डीएक्स वेक्टर के बीच में. फोर्स का डायरेक्शन यह, डीएक्स का डायरेक्शन भी यह. फोर्स और डीएक्स कोलिनियर, अभी भी एंगल वही 0 डिग्री ही रहेगा. कॉस 0 डिग्री ही लिखेंगे. मॉड ऑफ फोर्स इंटू मॉड ऑफ डीएक्स इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. मॉड ऑफ फोर्स की जगह kx, मॉड ऑफ dx की जगह dx, एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री की जगह +1. डिफरेंशियल वर्क इज kx dx, अभी भी यही एक्सप्रेशन रहा. और टोटल वर्क डिटरमाइन करने के लिए, टोटल वर्क इन ऑर्डर टू कंप्रेस इट बाय dx लेंथ, द टोटल वर्क इन ऑर्डर टू कंप्रेस इट बाय dx लेंथ वुड बी गिवन लाइक दिस. वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ dw और इंटीग्रल ऑफ kx dx. के कॉमन, सॉरी, के इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. ये इंटीग्रल साइन से बाहर आया. वर्क डन इज के इंटीग्रल ऑफ x dx. नाउ वंस अगेन वी नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिट्स. जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट्स देख लेते हैं और लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओरिजिनली जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तब उसका कंप्रेशन 0 है, और जब स्प्रिंग को x से कंप्रेस कर दिया तो उसका कंप्रेशन x है. तो इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम 0 to x, वही फॉर्मूला, वही इंटीग्रेशन, वही रिजल्ट. आई सिंपली मीन टू से पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पर 0 कही जानी चाहिए. दिस इज अ रेफरेंस. एंड फाइनली आई कंक्लूड दैट स्प्रिंग मे बी एलोंगेटेड बाय x, स्प्रिंग मे बी कंप्रेस्ड बाय x. आप चाहे तो स्प्रिंग को x से एलोंगेट करें, आप चाहे तो स्प्रिंग को x से कंप्रेस करें. The potential energy stored in the spring would remain half kx square. स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है वह हाफ kx स्क्वायर ही रहती है. Now, the next is an interesting and important concept. देखिए, हमने न्यूटन्स लॉ में एक बात देख रखी है, पढ़ रखी है, सुन रखी है. अ बॉडी एक्सीलरेट
ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ओनली. इंटरनल फोर्सेस नेवर एक्सीलरेट द बॉडी. कोई सा भी सिस्टम है, कोई सी भी बॉडी है, तो वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा ही एक्सीलरेट होती है. कोई सी भी बॉडी इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सीलरेट नहीं होती. वर्क पावर एनर्जी में हम कहते हैं वर्क कैन बी डन इवन बाय इंटरनल फोर्सेस. जो वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही नहीं बल्कि इंटरनल फोर्सेस भी अकाउंट करना पड़ता है, और इंटरनल फोर्सेस के द्वारा भी पॉजिटिव और फाइनाइट वर्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए हम फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, हम उसकी बात कर लेते हैं. जैसे यह एक पॉजिटिव चार्ज Q है और यह एक नेगेटिव चार्ज Q. These are the two charged particles, one having positive charge, another one having negative charge. इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स होएगा. That force between the two charged particle would be definitely attractive and we call it electrostatic force. The electrostatic force between the two charged particle is K into Q1 Q2 by R square. Some constant into the two charges into R square and it would be attractive. इस पार्टिकल पर भी फोर्स इस तरह से लग रहा है, इस पार्टिकल पर भी फोर्स इस तरह से लग रहा है. If the two particles are taken as a single system, if we imagine two particles as a single system, then net external force is 0. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. दिस आर इक्वल एंड अपोजिट. इफ दिस पार्टिकल A and this particle B, this force on A due to B and this force on B due to A. Force on A due to B is minus of force on B due to A. If we add the two forces, the net force is 0 and there is no net external force acting on it. इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. अब if they are released from rest, if released from rest, they are released from rest, क्या होगा? ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे के करीब आएंगे. करीब आते हुए दोनों पार्टिकल एक्सीलरेट करेंगे और एक्सीलरेट करते हुए दोनों पार्टिकल अपनी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे. यह प्लस Q चार्ज यह भी कुछ वेलोसिटी से और यह जो माइनस Q चार्ज यह भी कुछ वेलोसिटी से, दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ वेलोसिटी से अप्रोच करने लगेंगे और जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे
दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब जरा सोचिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स देयर इज सम वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। Kinetic energy increases. It implies that work done is finite. In fact, work done is change in kinetic energy. जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है उतना ही वहां पर वर्क डन हो रहा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। नाउ हु इज डूइंग दिस वर्क? कौन कर रहा है यह वर्क? हम कहते हैं भले ही सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इन दिस केस द इंटरनल फोर्सेस आर डूइंग सम वर्क। इंटरनल फोर्सेस की वजह से यह बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और इंटरनल फोर्सेस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से वहां पर वर्क हो रहा है। हम कहते हैं दिस पार्टिकल गॉट displaced from here to here। यह पार्टिकल इस तरह से यहां डिस्प्लेस हुआ है, यह पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है। फोर्स ऑन दिस पार्टिकल A is collinear with displacement of particle A। पार्टिकल A पर जो फोर्स लग रहा है और पार्टिकल A का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कोलिनियर है। Means this force AB is doing some finite positive work over particle A। इसी तरह से पार्टिकल B पर जो फोर्स लग रहा है और पार्टिकल B का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, the force and displacement are collinear। Once again there is some finite positive work done by this internal force on particle B। पार्टिकल A पर भी फाइनाइट पॉजिटिव वर्क हो रहा है, पार्टिकल B पर भी कुछ फाइनाइट पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एंड दिस फाइनाइट पॉजिटिव वर्क इज बीइंग डन बाय इंटरनल फोर्सेस। द नेट वर्क वुड बी द सम ऑफ द टू, और वहां पर वॉट एवर इज work is being done by internal forces, that appears as the change in kinetic energy। हम कहते हैं work is done by internal forces as well। We need to account for the work done by internal forces as well। Internal forces may do finite work। We need to account for it along with एक्सटर्नल फोर्सेस। हमें वर्क डिटरमाइन करते समय, वर्क का एनालिसिस करते समय केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही नहीं, इंटरनल फोर्सेस को भी अकाउंट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी फाइनाइट वर्क होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्योंकि इसके पहले जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे तो न्यूटन्स लॉ में हम कभी भी इंटरनल फोर्सेस को अकाउंट नहीं करते थे। हम कहते थे कि कोई सी भी बॉडी इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सीलरेट नहीं होती है। बॉडी यदि एक्सीलरेट होती है तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। तो हम जो भी फ्री बॉडी डायग्राम लेते थे उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही सोचते थे। और इधर हम एक डिफरेंस देख रहे हैं कि जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे
और जब हम सिस्टम पर वर्क डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो वर्क डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्सेस ही नहीं बल्कि इंटरनल फोर्सेस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के द्वारा भी पॉजिटिव वर्क हो सकता है, एज इन दिस केस। नाउ this is a cliff at a height h, and we have got a particle at height h, and this particle is projected with some velocity v, and this particle goes into such parabolic path and ultimately it falls at this point. Now, if some ask what is work done by the gravitational force during this phenomena, during this process, work done by gravity. अब देखिए, throughout the motion, throughout the trajectory, अलग अलग समय पर ऑल दो सिचुएशन अलग अलग रही है। इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वह फिक्स रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होता रहा। इस तरह से mg का डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स रहा है और वहां पर डिस्प्लेसमेंट उसका डायरेक्शन चेंज होता रहा। But we used to say, in order to calculate work done by gravity, it's independent of the path adopted by the system or path adopted by the particle. पार्टिकल ने एग्जैक्टली क्या पाथ लिया है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। We used to say displacement, the displacement vector, it simply depends on initial and final location. हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक एरो बना दें, दिस वुड बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। थ्रूआउट द मोशन force had remained constant, its magnitude had remained constant, its direction had remained constant. Force is constant during motion, both in magnitude as well as direction. ऐसी कंडीशन में वर्क कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन F dot S. It can be determined by this expression mod F mod S cos theta. अब हम कहते हैं mod F तो हम जानते हैं mg which is in vertically downward direction, यह mg है किसी भी समय पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, ऐसा आई टोल्ड यू,
आपको अलग अलग पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो बना दीजिए. दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज एंगल बिटवीन displacement vector and force. And now observe that this is mod s. This length of arrow is mod s. Initial से final position तक यह mod s कहलाता. And observe that mod s cos theta is height h. Mod s cos theta is height h. And we used to say magnitude of force is mg and s cos theta is h. Work done is simply mgh. हमें जब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है तो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन और उस डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल का इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट, mg का वर्टिकल डायरेक्शन है और इस वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट. हम सिर्फ यह चीज देख लेते हैं. एंड वी यूज्ड टू से दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी.